عثمان بے جب بھی کسی قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں تو اس قلعے میں عثمان بے اس نیت سے جاتے ہیں یا تو وہاں فتح کا پرچم لہرایا جائے گا یا عثمان بے شہید ہو کر لوٹیں گے۔ عثمان بے کا یہی جذبہ عثمان بے کے لیے نئی فتوحات لاتا ہے۔ کورنش عثمان سیریز کی ایک اور دھماکے دار قسط اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ عثمان بے بازنطینیوں کے ایک اور اہم قلعہ پر کائی پرچم لہرا چکے ہیں۔ جہاں عثمان بے کے اتحادیوں کی سیریز میں انٹری کا مسلسل سلسلہ جاری ہے، وہاں عثمان بے کے دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ کاراسی بے کے جانے کے بعد منگولوں نے عثمان بے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ البائے آلپ جو ابھی تک عثمان بے کا سب سے وفادار ساتھی تھا، البائے آلپ نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر کمانڈر لوکاس کے پاس قلعے میں رہ کر عثمان بے کو خفیہ معلومات دی تھی۔ البائے آلپ کی وجہ سے صوفیہ کے ہاتھوں بالا خاتون بچ گئی تھی۔ ابھی البائے آلپ غدار نکلا ہے اور البائے آلپ منگولوں کا ساتھی نکلا ہے، اس طرح سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا حقیقت میں البائے آلپ غدار ہے یا البائے آلپ عثمان بے کا ساتھی ہے؟ کیا عثمان بے کے خفیہ منصوبے کے تحت البائے آلپ منگولوں کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ بیگم خاتون جو البائے آلپ کے راز سے واقف ہو چکی ہے، کیا بیگم خاتون البائے آلپ کا راز فاش کر دے گی؟ البائے آلپ کے راز بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں البائے آلپ کے کردار کو کس سمت دکھایا جائے گا؟ منگول کمانڈر اولگان اپنے ایلچی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے عثمان بے کے کس سپاہی کو شہید کرے گا؟ کمانڈر لوکاس جو آکیسار قلعہ کی فتح کے موقع پر بھاگ نکلا تھا، کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کی موت کب دیکھنے کو ملے گی؟ کیا کراسی بے، گرمیان قبیلہ ان تمام ترک قبائل کو اب سیریز کا حصہ نہیں بنایا جائے گا؟ عثمان بے ارحان اور ہولوفرا کے ذریعے منگولوں کے خلاف کیا بڑی گھات لگانے والے ہیں؟ حلیمہ خاتون اپنے خاندان سے کب ملاقات کرے گی اور حلیمہ خاتون پر صوفیہ کی حقیقت کھل کر کب سامنے آئے گی؟ فاطمہ خاتون کی شادی کس سردار سے ہونے والی ہے؟ دوستو، ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ کورنش عثمان سیریز سے جڑی تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ عثمان بے فتوحات کے راستے پر چلتے ہوئے بازنطینی قلعوں پر کائی پرچم گاڑتے نظر آ رہے ہیں۔ عثمان بے کی کامیابیوں اور سیریز میں عثمان بے کی تاریخی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے وقت میں جہاں عثمان بے کمانڈر لوکاس کو موت کے گھاٹ اتارتے نظر آئیں گے، وہاں بالا خاتون صوفیہ کو جہنم واصل کرتی دکھائی دیں گی۔ حلیمہ خاتون کی ہمیشہ کے لیے کائی قبیلے واپسی ہوگی۔ منگول کمانڈر اولگان اپنے ایلچی توائگر کی موت کا بدلہ لینے عثمان بے کے پاس آیا ہے۔ دوسری طرف فینز ابھی البائے آلپ کی حقیقت جاننے کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ البائے آلپ کے پیچیدہ رازوں کو جاننے میں فینز بہت زیادہ تجسس ظاہر کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک بات آپ پر واضح کرتے جائیں کہ البائے آلپ غدار نہیں ہے۔ البائے آلپ جو کائی نسب سے ہے اور عثمان بے کے چچا سنگرتکین کا پوتا ہے۔ سنگرتکین بے جب منگولوں کے جال میں پھنس گئے تھے تو عثمان بے نے اپنے چچا کو منگولوں کے جال سے بچایا تھا۔ سنگرتکین بے نے اپنے پوتے البائے آلپ کی بہت اچھی پرورش کی ہے اور سنگرتکین بے نے البائے آلپ کو جاسوسی کی بہت زیادہ تربیت دی تھی۔ اسی وجہ سے منگولوں کے بارے میں البائے آلپ بہت زیادہ جانتا ہے اور ایک لمبے عرصے سے البائے آلپ ایک خفیہ مشن پر ہے۔ ابھی جیسا کہ منگولوں نے عثمان بے کو گھیر لیا ہے، منگول جب بھی سامنے آتے ہیں عثمان بے کی فتوحات کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ عثمان بے بازنطینیوں کو تو آسانی سے شکست دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ منگولوں اور بازنطینیوں کے ایک ساتھ آنے سے عثمان بے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ منگول نوکروں کی تعداد ہر طرف ظلم ڈھاتی نظر آتی ہے۔ ابھی بھی منگول کمانڈر کے ایلچی نے آتے ہی کائیوں کے اتحادی قبیلوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، کسی کو بھی منگولوں نے نہیں چھوڑا۔ ابھی عثمان بے کو البائے آلپ ہی بڑی مشکل سے بچائیں گے، بلکہ منگول کمانڈر اولگان کی موت میں البائے آلپ کا بڑا ہاتھ ہوگا۔
इल्बाए आल्प ने मंगोल कमांडर ओल्गान को बताया कि वो उस्मान बे का एतमाद जीत चुका है, जबकि हकीकत में इल्बाए आल्प ओल्गान के खिलाफ काम करेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि मंगोल कमांडर ओल्गान का एतमाद जीतने के लिए कुछ काइयों को नुकसान भी इल्बाए आल्प पहुंचाता नजर आए, लेकिन इल्बाए आल्प की उस्मान बे के लिए वफादारी किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। बेगम खातून जो ये जान चुकी है कि इल्बाए आल्प काई नस्ब से है, बेगम खातून अभी इल्बाए आल्प में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। आने वाले वक्त में इल्बाए आल्प और बेगम खातून की शादी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी सीरीज में वो तारीखी वक्त दिखाया जा रहा है जब मंगोलों के साथ तमाम तुर्क रियासतों ने इत्तेहाद कर लिया था। करासी में गरमियान कबीला सब ने मंगोलों की बैत कर ली थी, लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में भी एक मर्द मुजाहिद डटा रहा। उस्मान बे मंगोलों के सामने झुके नहीं थे, ना ही उस्मान बे मंगोलों को महसूलात देने पर राजी हुए और ना ही उस्मान बे ने किसी भी मंगोल कमांडर की बैत की थी, बल्कि उस्मान बे ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुश्मनों के सर गिराकर फतूहात का सिलसिला जारी रखा। यही वजह है कि उस्मान बे बिला तफरीक दुश्मनों को गिराते गए। उस्मान बे के सामने फिर ये मानी नहीं रखता कि दुश्मन मंगोल है या बाजंतीनी। उस्मान बे हमेशा अपने दुश्मनों को अपनी तलवार की नोक से मार देते दिखाई देते हैं। अभी मंगोल एलची जो उस्मान बे के साथ जुड़े कबाइल पर जुल्म कर रहा था, उस्मान बे ने अंजाम के डर के बगैर मंगोल एलची को एक ही झटके जहन्नम वासिल कर दिया। आकेसार किला की शानदार फतह के बाद उस्मान बे का अगला हदफ वाज़े तौर पर बुरसा होगा। उस्मान बे जल्द ही बुरसा का मुहासरा शुरू करेंगे और यही वजह होगी कि बुरसा की फतह के मौका पर ही कमांडर लोकास की मौत देखने को मिलेगी, जबकि बुरसा की फतह से पहले ही सोफिया जहन्नम वासिल हो जाएगी। बुरसा का यूं तो लंबे अरसे तक मुहासरा जारी रहेगा, लेकिन उस्मान बे बुरसा को फतह करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उस्मान बे की रहनुमाई से उरहान बे बुरसा को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे और इसी तरह उस्मान बे की फतूहात का मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, आप कुर्लिश उस्मान सीरीज को किस मुल्क किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो का आगाज होगा सुलेमान शाह के वालिद काया आल्प से और इख्तिताम करेंगे सुंगुर्तुगीन के पोते इल्बाए पर। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद तरीन इल्मी मालूमात से भरपूर होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द यानी कि बहुत थोड़े वक्त में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा कीमती और तारीखी मालूमात पेश की जाए। तो शुरू करते हैं सुलेमान शाह के वालिद काया आल्प से। उस्मानी रिवायत के मुताबिक काया आल्प सुलेमान शाह का बाप था। वो अर्तुल गाजी के दादा और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के परदादा थे। काया आल्प की पैदाइश 1140 में हुई और वफात 1214 में अर्ज़ रूम यानी कि तुर्किया में हुई। तारीख के मुताबिक काया आल्प के दादा या नाना गो खान, जबकि परदादा या परनाना ओगोस खान थे। तारीखी किताबों में काया आल्प के सिर्फ एक बेटे सुलेमान शाह का जिक्र मिलता है, जो कि अर्तुल गाजी के वालिद थे। अर्तुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह की पैदाइश 1166 में हुई, जबकि इसकी वफात 1236 में दरियाए फरात में हो गई। सुलेमान शाह ने अपने पीछे 4 बेटे छोड़े, जिनमें से एक का नाम अर्तुगुल, दूसरे का नाम सुंगुर्तुगीन बे, तीसरा गुंदोगदू बे और चौथा दुंदार बे था। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ से हम अर्तुल गाजी, गुंदोगदू बे और दुंदार बे को स्किप करते हैं और चलते हैं सुंगुर्तुगीन बे की तरफ, यानी कि इल्बाए के दादा की तरफ। क्योंकि इस वीडियो में बात हो रही है इल्बाए आल्प के आबा व अजदाद के मुताल्लिक, तो आइए सबसे पहले आपके सामने सुंगुर्तुगीन बे, जो कि इल्बाए का दादा था, उसकी मुख्तसर तारीख आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन याद रहे कि सुंगुर्तुगीन के मुताल्लिक कुछ ज़्यादा तारीखी मालूमात दस्तियाब नहीं हैं। तो सुलेमान शाह के बेटे सुंगुर्तुगीन की पैदाइश 1187, जबकि इसकी वफात 1277 में हुई। इसके मजीद 3 भाई गुंदोगदू बे, दुंदार बे और अर्तुगुल गाजी थे। लेकिन प्यारे नाज़रीन इकराम, सुंगुर्तुगीन की मजीद तारीख के मुताल्लिक कोई भी मालूमात नहीं मिलती, ना तो इनके बच्चों के बारे में और ना ही इनकी बीवियों के बारे में कोई मालूमात मिलती हैं। आपने देखा होगा कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के अंदर जब इल्बाए की एंट्री करवाई गई और उसने ये कहा कि मैं सुंगुर्तुगीन का पोता हूँ, तो उसने भी अपने वालिद का नाम नहीं लिया और इसकी सबसे बड़ी वजह तारीखी मालूमात की कमी है। जब हम सुलेमान शाह के बेटे सुंगुर्तुगीन की तारीख उठाकर देखते हैं तो ये हमें छुपा हुआ एक राज नजर आता है, जो कि कभी तो मंगोलों के यहाँ, कभी सलेबियों के यहाँ
कभी पहाड़ों में, कभी जंगलात में और कभी कहीं, यानी कि सल्तनत की खिदमत के लिए इधर उधर रहता था। आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज के अंदर भी ये बात नोट की होगी कि अर्तुगरुल गाजी का खानदान भी था, गुंदोगदू का खानदान भी था, दुंदार का खानदान भी था, लेकिन हैरत की बात यह है कि संगुर्तगीन के खानदान के मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं दिखाई गई। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों को याद हो तो एक दफ़ा संगुर्तगीन ने यह कहा था कि मेरे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है, मगर उनके मुतालिक फिर कोई खबर ना मिली। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज के अंदर संगुर्तगीन को मंगोलों के यहाँ, सलेबियों के यहाँ और बहुत सारी जगहों पर एक जासूस के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया। आप यूँ कह सकते हैं कि संगुर्तगीन ने अपनी सारी ज़िंदगी सल्जोक सल्तनत की खातिर और अपने कबीले के अमन के लिए वक्त कर दी थी, क्योंकि उस दौरान मंगोल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और सलेबियों की भी ताकत की कोई इंतहा न थी। इसी वजह से संगुर्तगीन ने मंगोलों के अंदर जासूसी करके उनके निज़ाम को इस तरह तबाह बर्बाद किया और उनके मनसूबों को ऐसा खाक में मिलाया कि उनकी नस्लें आज भी संगुर्तगीन के नाम से डरती हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद कुल्लुच उस्मान सीरीज़ में एक मरतबा संगुर्तगीन की वापसी करवाई गई और उस दौरान भी उनका मकसद सलेबियों के मनसूबों को खाक में मिलाना और मंगोलों को कड़ी ज़रब लगाना था। उस्मान गाजी के साथ इसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन अब कुल्लुच उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 के अंदर संगुर्तगीन के पोते की एंट्री करवाई गई, जिसका नाम इलबाई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वो भी अपने दादा की तरह एक जासूस है, यानी कि जासूसी निज़ाम में बहुत ज़्यादा महारत रखता है और ऐसा लगता है कि इसकी तालीम और तरबियत बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि ये जिस भी काम में हाथ डाल ले उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसे 3 से 4 वजीफे दिए गए और इसने वो बहुत ही एहतियात से और अपनी होशियाराना चाल के ज़रिए उनको पूरा कर दिया। लेकिन अभी तक उस्मान गाजी इसके मुतल्लिक नहीं जानते कि ये हमारा रिश्तेदार है, संगुर्तगीन का पोता है या फिर हमारा ही खून है। इसको समझा जाता है कि ये घोड़ों का रखवाला है और कबीले का एक आम शख्स है जो कि हमारे लिए काम करता है और काम भी इतना कर सकता है, यानी कि जासूसी में थोड़ी बहुत महारत रखता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में हम इलबाई के मुतल्लिक बहुत से अहम सीन्स देखने वाले हैं। उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर पहले कोनूर का किरदार था, जो कि सीज़न 5 के आखिर तक ख़त्म कर दिया गया और अब कोनूर की कमी को पूरा करने के लिए इलबाई का किरदार हमारे सामने पेश किया गया, जिसको मद्दाहों ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इलबाई की मुकम्मल तारीख के मुतल्लिक जानना चाहते होंगे कि ये संगुर्तगीन का वाकई में पोता है भी सही या नहीं, तारीख में इसके मुतल्लिक कोई मालूमात मिलती हैं या नहीं। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए इलबाई के मुतल्लिक बहुत सारी तारीखी मालूमात लाया हूँ। अगर तारीख की तरफ देखा जाए तो हाकी इलबाई नाम का एक शख्स सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई सालों में ताकतवर उस्मानी कमांडर था। तारीखी लिहाज से सबसे पहले वो कराची अमारत के साथ था, यानी कि उनके यहाँ एक कमांडर था, लेकिन उस्मान गाजी के साथ उसके ताल्लुकात जैसे जैसे अच्छे होते गए तो वो ओरहान गाजी का एक ताकतवर और जांबाज सिपाही बन गया और सलेबियों के बहुत सारे किलों की फतूहात में इसने ओरहान का साथ दिया और कई मरतबा ओरहान की फ़ौज की क़यादत भी की, यानी कि एक ताकतवर कमांडर की हैसियत से ओरहान गाजी के साथ रहा। और रुमैली की जंग में हाकी इलबाई को फतूहात का काम सौंपा गया, जहाँ उस्मानी बलक के दूसरे हुक्मरान ओरहान के बेटे सुलेमान पाशा के महताब तुर्कों ने 1314 में कदम रखा था। इस अहम मुहिम के दौरान इलबाई ने अपने आप को एक ताकतवर कमांडर साबित कर दिया। इसने बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा किया और उस्मानी सल्तनत को वसअत दी। और इसके अलावा करमैन की जंग में इलबाई के मुताल्लिक हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब मियां सुल्तान मुराद अनातोलिया में कदीम दौर के बकास पर कब्जा करने के लिए मसरूफ़ था तो एक सलेबी फ़ौज दरियाए मारिसा के करीब नमदार हुई और इनका मकसद मुसलमानों को बहुत कड़ी ज़रब लगाना था। लेकिन इलबाई वहाँ पर मौजूद था और रात के अचानक हमले में इलबाई ने बहुत बहादुरी से काम लिया और सलेबियों की उस फौज को तबाह बर्बाद कर दिया और उनके मनसूबों को खाक में मिला दिया। तो तारीख के मुताबिक हाकी इलबाई की ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से इसका इक़्तिदार मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया। करमैन की लड़ाई के फ़ौरन बाद हाकी इलबाई का इंतकाल हो गया और यह इंतकाल बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ और दुखी कर देने वाला था। और यह हुआ कुछ यूँ था कि हाकी इलबाई की बढ़ती हुई ताकत से परेशान होने वाले एक उस्मानी कमांडर लाला शाहीन ने इसको जहर दिया, जिसकी वजह से इलबाई का इंतकाल हो गया। तो नाज़रीन इकराम, तारीख के मुताबिक इलबाई के मुतल्लिक यही मालूमात मिलती हैं, लेकिन इसके मुतल्लिक ये मालूमात नहीं मिलती कि यह संगुर्तगीन का पोता था या फिर कोई और था। यह बात तो वाज़ेह है कि संगुर्तगीन की नस्ल आगे चली होगी, लेकिन इसके मुतल्लिक तारीखी मालूमात बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर इलबाई की एंट्री करवा कर बहुत ही अच्छा काम किया गया, क्योंकि देखने वालों को भी ये पता चल चुका है कि संगुर्तगीन की नस्ल भी अभी ज़िंदा है। जिस तरह अर्तुगरुल गाजी की नस्ल यानी कि उस्मान गाजी, ओरहान गाजी, अलाउद्दीन वगैरह ज़िंदा हैं, तो इसी तरह संगुर्तगीन की नस्ल भी अभी ज़िंदा है।
और यूँ सलमान शाह के बाकी पोते जैसा कि गुंदोस बे, साफी बे तो इंतकाल कर गए, लेकिन अगर मोहम्मद मुज़दाक स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है तो साफी के बेटे अर्तुगरुल की एंट्री भी करवा दे और गुंदोस के बेटे अख्तमूर की एंट्री भी उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कुर्रश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर अब सल्तनत उस्मानिया का क़याम दिखाया जा चुका है। इसी वजह से अब इनके ख़ानदान को मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए और उन तारीखी किरदारों की एंट्री करवाई जाए जो कि बहुत पहले इस ड्रामा सीरीज़ को छोड़ चुके हैं। अगर मोहम्मद मुज़दाक तारीखी किरदारों को उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर लाने में कामयाब हो गया तो इसका ड्रामा सीरीज़ भी बुलंदियों की तरफ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं उमर एक्सप्लेन। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्रश उस्मान की अगली एपिसोड जो कि वॉल्यूम 177 इस हफ्ते रिलीज की जानी थी, वो रिलीज क्यों नहीं की गई और इसके अलावा अगली आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, हम उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आने वाली एपिसोड में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली एपिसोड के आखिर में हमें उरहान साहब जो कि पहले ही मंगोलों के हाथों फंस चुके थे और कैद थे, और उरहान के साथ साथ उस्मान साहब के खास सिपाही बोरान भी मंगोलों के हत्थे चढ़ चुके थे और इस तरह उरहान और बोरान को पहले ही मंगोलों ने पकड़ लिया था। और पिछली किस्त के आखिर में हमने देखा था कि किस तरह से गद्दार अलबाई ने उस्मान साहब और जैरकुताई को भी अपने जाल में फंसाकर किस तरह मंगोलों के अड्डे पर ले गया था और वहां पर उन सब को मंगोलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। क्योंकि पिछली एपिसोड बहुत ज्यादा सस्पेंस पर खत्म हुई थी, इसलिए आने वाली एपिसोड का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि इस हफ्ते रिलीज नहीं की गई। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं उस्मान साहब, जैरकुताई और बाकी तमाम सिपाही जैसे ही वापस कबीले लौटते हैं तो वो कबीले में हर तरफ लाशों का मंजर देखते हैं। बहुत से लोग अपने प्यारों के पास बैठे रो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, अब देखना ये होगा कि उस्मान साहब किस तरह से मंगोलों के हाथों से बच पाते हैं या फिर मंगोल कमांडर खुद ही उस्मान साहब को जाने देता है। जबकि इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि कमांडर ओलुगान भी काई कबीले पहुंच चुका होता है। उस्मान साहब, बाला खतून और बाकी सब ओलुगान के सामने मौजूद होते हैं और ओलुगान उस्मान साहब से पूछ रहा होता है, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया उस्मान? ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं, तुम जीत गए, और अपनी जैन और हथियार ओलुगान के सामने फेंक देते हैं। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है, नहीं बाबा नहीं, मैं अपने बाबा को हसीर नहीं होने दूंगा। जबकि फातिमा खातून और बाकी साहब भी बहुत ज्यादा रो और चीख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब को ओलुगान ने कैद कर लिया होता है और उसे बांधा हुआ होता है और तमाम कबीले के लोगों से मुखातब होकर कह रहा होता है, देखें तकब्बर की इंतहा, देखें ताकि तुम लोग इससे सबक हासिल कर सको। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि गोंजा खातून बेगम और बाला खेमे में मौजूद होते हैं और गोंजा बाला से कह रही होती है, कबीले में होने वाली तमाम शरारतों के पीछे बेगम का हाथ था, क्योंकि ये उस्मान साहब से प्यार करती है। ये सुनते साथ ही बाला एक जोरदार थप्पड़ बेगम को रसीद कर देती है, जिस पर बेगम को निहायत गुस्सा आता है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि जब कमांडर ओलुगान उस्मान साहब को जंजीरों से कैद करके काई कबीले से लेकर जा रहा होता है तो कबीले के लोग बहुत ज्यादा रो और पीट रहे होते हैं और ओलुगान की आवाज गूंज रही होती है, काई ममलकत में किसके लिए शुरुआत है और किसका इख्तिताम है, उसका फैसला मैं करूंगा। नाजरीन, फिर इसके बाद हम गद्दार इलबाई को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए काई कबीले के सरदारी खेमे में दाखिल होता है और सीधा जाकर सरदारी नशिस्त पर बैठ जाता है और उसकी आवाज गूंजती है, मैं ही इस पोस्ट का मालिक हूँ, अब से इस रियासत पर मैं हुकूमत करूंगा उस्मान। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में उरहान को देखते हैं जो कि फांसी घाट पर मौजूद होता है। उसके गले में रस्सियां डाली होती हैं और पांव के नीचे लकड़ी रखी होती है और उसकी आवाज गूंजती है, हमने ना जीने के लिए भीख मांगी है और ना ही मरने के लिए, हमारा वतन हमेशा कायम रहेगा। और इस तरह से उस्मान साहब को जंजीरों में कैद करके पूरी तरह से कबीले से ले जाया जाता है। तो नाजरीन, अब देखना ये होगा कि उस्मान साहब ने किस सूरत में हार तस्लीम की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस्मान साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए हार तस्लीम की है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उस्मान साहब किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करेंगे। पिछली एपिसोड में जब हमने देखा था कि उस्मान साहब और जैरकुताई जब मंगोल कमांडर ओलुगान के फंदे में फंस गए थे तो वहां पर यकीनन कमांडर ओलुगान ने उस्मान साहब से डील की होगी और उस्मान साहब को इस शर्त पर छोड़ दिया होगा कि अगर वो अपने कबीले के लोगों को बचाना चाहता है जिसे उसने गद्दार इलबाई के जरिए जहर दिया था और तमाम लोग चूंकि उस जहर की वजह से मर रहे होंगे और उस्मान साहब की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा होगा, तो उस्मान साहब ने मजबूरन ओलुगान से तरियाके जहर लेने के लिए अपनी हार तस्लीम कर ली होगी और उसकी बैत में चला गया होगा। क्योंकि इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि उरहान तो मंगोलों के हाथों
हाथों कैद होता है, लेकिन बुरहान काई कबीले में ही मौजूद होता है। अब ऐसा लग रहा है कि कमांडर ओलुगान ने बुरहान को नहीं छोड़ा होगा, लेकिन बुरहान को छोड़ दिया होगा। और उस्मान साहब जैसे ही वापस कबीले पहुंचे होंगे तो उन्हें एहसास हो गया होगा कि वो किसी भी सूरत तरियाके जहर नहीं बना सकेंगे, इसलिए उन्होंने हार तस्लीम कर ली होगी। और इसके अलावा अब देखना ये होगा कि गद्दार इल्बाई वाकई में गद्दार है या फिर वो किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए उस्मान साहब का साथ दे रहा हो और उस्मान साहब को उसके बारे में सब कुछ मालूम हो। ये तो हम आने वाली ही एपिसोड में ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते एपिसोड क्यों नहीं रिलीज की गई। तो नाजरीन, मैं आपको बताते जाऊं कि तुर्की में हर नए साल पर तकरीबन तमाम लोगों को 2 हफ्तों के करीब छुट्टियां होती हैं और तमाम काम बंद कर दिए जाते हैं। पूरा मुल्क छुट्टियां गुजार रहा होता है, तमाम अदाकार भी छुट्टियों पर ही होते हैं, इसलिए इस हफ्ते एपिसोड रिलीज नहीं हो सकी। और मुमकिन तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि आने वाले हफ्ते में भी उस्मान की एपिसोड नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उससे अगले हफ्ते 14 तारीख को एपिसोड नशर की जाएगी। इसलिए आप जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। आने वाली अपडेट और ट्रेलर के बारे में जानने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बार वक्त मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। सल्तनत उस्मानिया के वॉल्यूम 177 के ट्रेलर 1 में खुश आमदीद। ट्रेलर के शुरुआत में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे उन्हें शोहदा की लाशें ही दिखाई देती हैं। यह देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक बच्चे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचने वाला ओलुगान पूछता है, क्या ख्याल है उस्मान, क्या तुम्हारा अंजाम यही होगा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम जीत गए। ये कहते साथ वो अपनी जरा उतारने लग जाते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने बाबा को कैद नहीं होने दूंगा। मगर सिपाही उसे, जबकि खवातीन बाला खतून और फातिमा को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। फातिमा चिल्लाते हुए बाबा बाबा पुकारती है। सब कुछ हवाले करने के बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और उन्हें लकड़ियों के साथ बांध दिया जाता है। उनके करीब खड़े होकर ओलुगान कहता है, अपने तकब्बुर का अंजाम देखो उस्मान, तुम सब भी देखो और इबरत हासिल करो। अगले मंजर में बेगम की मौजूदगी में गोंचा बाला खतून से कहती है, कबीले में बर्पा होने वाले तमाम फसादात के पीछे बेगम का हाथ था, क्योंकि ये उस्मान साहब से प्यार करती है। यह सुनकर बाला खतून को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ बेगम को रसीद करती है। अगले मंजर में मंगोल जंगल से उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब के साथ साथ खवातीन और लोग भी उनके कैदी होते हैं। ओलुगान की आवाज गूंजती है, काई कबीले में किसके आगाज का और किसके इख्तिताम का वक्त है मैं जानता हूँ। मंगोल सिपाही काई झंडे भी उतार रहे होते हैं। इधर अलबाई काई कबीले के सरदारी खेमे में दाखिल होता है और तख्त की जानिब बढ़ते हुए कहता है, इस पोस्ट का मालिक मैं हूँ, अब इस रियासत पर मैं ही हुकूमत करूंगा उस्मान। उधर हम देखते हैं कि उरहान भी मंगोलों की कैद में होता है और उस्मान साहब पर भी मंगोलों ने नेज़े ताने होते हैं। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, हमने कभी ना जीने के लिए भीख मांगी है और ना कभी मरने के लिए, हमारा वतन कभी नहीं मिटेगा। और नाजरीन, इसके साथ ही ट्रेलर भी इख्तिताम पजीर होता है। अब तो ऐसा लगता है कि अलबाई वाकई में गद्दार है और उसकी गद्दारी का काई कबीले को एक बड़ा नुकसान हुआ है। काई कबीले के हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या कोई ऐसा आएगा जो उस्मान साहब की मदद करेगा, कोई ऐसा पुराना कैरेक्टर, कोसिस, तुर्गुत और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें गायब कर दिया गया था, क्या उनमें से कोई आ सकता है जो उस्मान साहब को इस मुश्किल से निकाले, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो